ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے آصف علی میمن کے حوالے سے۔ ادارہ ترقیات کراچی کے 20 گریڈ کے ڈائریکٹر جنرل آصف علی میمن کی گرفتاری کا معاملہ، ڈائریکٹر جنرل KDA کو عدالت میں پیش کرنا محکمہ اینٹی کرپشن پولیس کے گلے میں آ گیا۔ عدالتی سوالات نے سسٹم کی فرمائشی FIR اور گرفتاری کا پول کھول کر رکھ دیا۔ اختیارات سے تجاوز کا کیس اینٹی کرپشن نے بنایا، ثابت نہ کر پائے۔ عدالت نے ڈائریکٹر لا اور اینٹی کرپشن افسران کو جھاڑ پلا دی۔ سائیں سرکار کے سسٹم کے سامنے کھڑے ہونا DG KDA کے لیے بھی جرم بن گیا۔ وکیل صفائی نے موقف پیش کیا، جبکہ لنک جج ہونے کے باعث اینٹی کرپشن پولیس کو ملزمان کی 1 روزہ تحویل ملی۔ ہمارے پاس 20 گریڈ کے افسر کو اریسٹ کرنے کی CM کی پرمیشن ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے تمہارے۔ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی آصف میمن اور دیگر کے خلاف اختیارات کا ناجائز استعمال یا کچھ اور، عدالت نے کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں محکمہ اینٹی کرپشن کے ہاتھوں گرفتار DG KDA اور دیگر ملزمان کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ ہمارے پاس 20 گریڈ کے افسر کو اریسٹ کرنے کی CM کی پرمیشن ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے تمہارے۔ دوران سماعت عدالت کا استفسار تھا کہ ملزم کو کس کرپشن میں گرفتار کیا گیا، جس پر وکیل خواجہ شمس السلام کا کہنا تھا کہ ACE نے چیف سیکرٹری اور صوبے کے اعلی اختیاروں کی ناجائز احکامات نہ ماننے پر اینٹی کرپشن کا کیس بنا دیا گیا۔ چیف سیکرٹری میرے موکل کو ہراساں کر رہا ہے، آصف میمن کو گرفتار ہی غلط کیا گیا۔ اپنا ٹائم آئے گا تو ہم بات کریں گے نا بھائی۔ تمہارے پاس 20 گریڈ کے افسر کو اریسٹ کرنے کی CM کی پرمیشن ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے تمہارے۔ ایڈمنسٹریٹر میٹر میں تمہاری اینٹی کرپشن کی جورسڈکشن باہر ہے، کیسے میرے کو پکڑ کے بات کرتے ہیں؟ یہ آئین کا آرٹیکل ہے، تمہاری جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ اگر میں کسی نجم شاہ کا آرڈر نہیں مانتا تو میرے کو اریسٹ کرو۔ چیف سیکرٹری چیف منسٹر میرے پاس ڈسپلنری کارروائی کریں۔ عدالت کے بار بار استفسار کے باوجود پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر کے مناسب جواب نہ ملنے پر عدالت نے ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ایس کو طلب کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر AC کا موقف تھا کہ ملزم آصف میمن نے معطل افسران کو ریلیز نہ کر کے جرم کیا، جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ افسران کے ٹرانسفر ہونے اور معطل ہونے میں فرق ہے، ایسا کرے تو کوئی افسر یہ کام نہیں کرے گا، آپ بس ریمانڈ کے لیے ہمیں مطمئن کریں۔ مسلسل 3 گھنٹوں کی سماعت کے باوجود محکمہ اینٹی کرپشن عدالت کو ٹھوس شہادتیں دینے میں ناکام رہا، جس پر عدالت نے ملزمان کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو 1 روز کی زائد تحقیقات کی اجازت دیتے ہوئے سماعت کل 10:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ GM گوپانگ، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ جنوبی کی عدالت میں گرفتار DG KDA آصف علی میمن نے ہتھکڑیاں لگوانے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ مجھے ہتھکڑیاں نہیں لگا سکتے، آپ نے مجھے گرفتار ہی غیر قانونی طریقے سے کیا ہے۔ DG KDA آصف میمن نے تفتیشی افسر کو جواب میں کہا کہ میں نے نجم شاہ کا آرڈر نہیں کیا تو آپ مجھے گرفتار کر کے یہاں لے آئیں۔ ایک 20 گریڈ کے افسر کو آپ بغیر اجازت کے کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ مجھے گرفتار کرنے سے پہلے آپ کو وزیر اعلیٰ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو چیف سیکرٹری میرے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کرتے۔ کراچی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں گرفتار DG KDA آصف علی میمن نے ہتھکڑیاں لگوانے سے صاف انکار کر دیا۔ کہا کہ آپ مجھے ہتھکڑیاں نہیں لگا سکتے، آپ نے مجھے گرفتار ہی غیر قانونی طریقے سے کیا۔ DG KDA آصف میمن نے تفتیشی افسر کو جواب میں کہا کہ میں نے نجم شاہ کا آرڈر نہیں کیا تو آپ مجھے گرفتار کر کے لے آئیں۔ ایک 20 گریڈ کے افسر کو آپ بغیر اجازت کے کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ مجھے گرفتار کرنے سے پہلے آپ کو وزیر اعلیٰ سندھ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ مزید کہا کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا تھا تو چیف سیکرٹری میرے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کرتے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات بھی غیر قانونی تعمیرات کو نہ رکوا سکے۔ SBC کے افسران کی عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی، شہر قائد کا لیاقت آباد ٹاؤن کنکریٹ کا جنگل بن گیا۔
لیاقت آباد میں غیر قانونی تعمیرات کا سسٹم ضیاء عرف کالے کے سپرد کر دیا گیا۔ ضیاء عرف کالے نے رشوت کے عوض غیر قانونی تعمیرات کی کھلی چھوٹ دے دی۔ ڈی جی ایس بی سی اے سلیم رضا کھوڑو کا ضیاء عرف کالے پر مبینہ آشرواد برقرار۔ ڈی جی ایس بی سی اے کی سرپرستی میں غیر قانونی تعمیرات کا نیٹ ورک زور و شور سے جاری۔ سپریم کورٹ کے سخت احکامات بھی غیر قانونی تعمیرات نہ رکوا سکے۔ ایس بی سی افسران کی عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی۔ شہر قائد کا لیاقت آباد ٹاؤن کنکریٹ کا جنگل بن گیا۔ لیاقت آباد میں غیر قانونی تعمیرات کا سسٹم ضیاء عرف کالے کے سپرد۔ ضیاء عرف کالے نے رشوت کے عوض غیر قانونی تعمیرات کی کھلی چھوٹ دے دی۔ ڈی جی ایس بی سی اے سلیم رضا کھوڑو کا ضیاء عرف کالے پر مبینہ آشرواد برقرار۔ کراچی میں اندھیر نگری چوپٹ راج، پاور کی طاقت نے سیاہ اور سفید کی پہچان ہی بھلا دی۔ لیاقت آباد غیر قانونی تعمیرات میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ڈی جی ایس بی سی اے سلیم رضا کھوڑو کے مبینہ آشرواد نے ضیاء عرف کالے کو کھلی چھوٹ دے دی۔ لیاقت آباد میں غیر قانونی تعمیرات کا سسٹم ضیاء عرف کالے کے سپرد کر دیا گیا۔ ضیاء عرف کالے نے رشوت کے عوض لیاقت آباد میں غیر قانونی تعمیرات کی کھلی چھوٹ دے دی۔ رہائشی پلاٹ پر 6 سے 8 منزلہ فلیٹ کی طرز کی تعمیرات کے عوض کروڑوں روپے بٹور لیے گئے۔ سسٹم میں شامل افراد کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ٹائپسٹ ضیاء کالا ڈائریکٹر سمیت ملازمین کو کام نہ ہونے پر اداروں کے نام پر بلیک میل کرتا ہے، جبکہ مافیا کو لگام دینے والے نیب اور اینٹی کرپشن افسران بھی اس غیر قانونی تعمیرات کے دھندے میں مبینہ طور پر شامل ہیں۔ ڈی جی ایس بی سی اے سلیم رضا کھوڑو کے مبینہ آشرواد سے ٹائپسٹ ضیاء کالا نے لیاقت آباد ٹاؤن کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل کر دیا۔ لیاقت آباد میں بلڈر مافیا کی جانب سے رہائشی پلاٹ خرید کر وہاں فلیٹ کی طرز کی تعمیرات کرنے کی وجہ سے لیاقت آباد میں 80 گز کے پلاٹ کی قیمت 1.5 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیاقت آباد میں باقاعدہ مافیا کے طور پر کام کیا جا رہا ہے۔ لیاقت آباد ٹاؤن کے افسران روزانہ 7 سے 8 غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرانے کے لیٹر لے کر جاتے ہیں، لیکن صرف 2 سے 3 غیر قانونی تعمیرات پر کاسمیٹک ڈیمولیشن کرا کے رہائشی عمارت سے بھتہ وصول کرتے ہیں۔ لیاقت آباد میں غیر قانونی تعمیرات اور ڈی جی ایس بی سی اے سلیم رضا کھوڑو کی مبینہ آشرواد سے ٹائپسٹ ضیاء کالا کو نہ روکا گیا تو لیاقت آباد میں 60 گز کی عمارت پر کوئی بھی حادثہ کئی افراد کو موت کی نیند سلا سکتا ہے۔ کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ فیصل ترین، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور اب رخ کریں گے کراچی کے علاقے طارق روڈ کا۔ کراچی کے علاقے طارق روڈ کے پارک سے مدینہ مسجد اور دیگر تجاوزات ختم کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ مسجد سے ملحقہ کلب، مدرسہ اور دکانوں کے مالکان یا کرایہ داروں اور رہائشی افراد کو 24 گھنٹے میں انخلاء کے نوٹس۔ پولیس کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد کی ہدایت پر ایس ایچ او فیروز آباد نے متعلقین کو عدالتی حکم پر 24 گھنٹے میں پراپرٹی خالی کرنے کے نوٹسز موصول کرائیں۔ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ نوٹس متعلقہ عمارت پر بھی چسپاں کر دیے گئے۔
कराची के जिला वस्ती के इलाके नाजिमाबाद गोल मार्केट के अतराफ जबकि नॉर्थ नाजिमाबाद बफर जोन इरम शॉपिंग सेंटर के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी ने की, जबकि जिला जनूबी में फूल वाली गली खजूर बाजार में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन में दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियों और दीवारों के सनशेड्स को मस्मार किया गया और मुख्तलिफ किस्म की तजावुजात, केबिन, होटल का सामान, कुर्सियाँ, मेजें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त की गयी। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना है कि कराची के 7 अजला में रोजाना की बुनियाद पर दिन रात और छुट्टी वाले रोज भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने आज भी 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो है वो बड़ी कार्रवाई की गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 2 मकामात पर अगर आप देखेंगे तो गोल मार्केट नाज़िमाबाद पे हमारी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर इरम शॉपिंग प्लाजा के ऊपर वहाँ पर जितने भी तजावुजात है उनका खात्मा किया जा रहा है। दुकानों के सामने बनी हुई जितने भी चबूतरे, सीढ़ियाँ, सनशेड्स और दीगर तजावुजात सबको मस्मार किया जा रहा है और मुख्तलिफ का सामान जब्त किया जा रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरह डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर भी हमारी बड़ी कार्रवाई हुई है, जो कि खजूर बाजार ओल्ड सिटी एरिया के अंदर फूल वाली गली के अंदर जितने भी तजावुजात थी उसका खात्मा किया गया और मुख्तलिफ किस्म का सामान जब्त किया गया। इस ऑपरेशन में भी हमारे साथ इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेंजर्स और सिटी वार्डन मौजूद थे। महकमा इंसदाद तजावुजात की टीमों के साथ इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, रेंजर्स, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन और ऑफिसर्स और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौके पर मौजूद थे। और अब कुछ बात करेंगे साल 2021 में शहर में तजावुजात के नाम पर होने वाली तारीखी कार्रवाइयों की। आपको बताएं कि अदालत हुक्म पर अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब मिसमार किया गया, जबकि दूसरी जानिब गार्डन की जोबली मार्केट भी मिट्टी में मिल गई। कसीरुल मंजिला नस्ला को भी अदालत हुक्म पर ढा दिया गया। गुजर नाला और औरंगी नाले की तोसी के सिलसिले में हजारों मकीनों को भी बेदखल होना पड़ा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात हुई, जबकि मुलाकात में सूबे सिंध की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों पर बातचीत हुई। सदर मुमलिकत ने कहा कि कराची को दरपेश मसाइल फौरी हल करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि कराची को दरपेश मसाइल फौरी हल करने की ज़रूरत है। खबर शामिल करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए सिंध का इजलास हुआ। कराची और गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में अवामी मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ताखीरी हरबे नाकाबिल कबूल है। और अब कुछ बात करेंगे जमात इस्लामी के धरने के हवाले से। बल्दियाती तरमीम बिल के खिलाफ वज़ीर आला हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना आज होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, जबकि शहर भर में जमात इस्लामी की जानिब से कैंप भी कायम कर दिए गए। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का हसन स्क्वायर पर एहतजाजी धरने से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि हम सिंध असम्बली का घेराव करेंगे, कोई रोकने की गलती ना करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद सिलेक्टेड हुकूमत है, इसे हम शहर के हुकूक पर मजीद डाके डालने नहीं देंगे। बल्दियाती काला कानून नामंजूर। जमात इस्लामी का हसन स्क्वायर चौरंगी पर बल्दियाती कानून के नफाज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। दौरान एहतजाज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी व सिंध हुकूमत को ललकार डाला। बोले, कल हम सिंध असम्बली का घेराव करते हुए उसके बाद तारीखी धरना देने जा रहे हैं, हमें कोई रोकने की गलती ना करे। कल इंशाअल्लाह 4 बजे हम सिंध असम्बली पर एक तारीखी धरना देने जा रहे हैं और इस धरने का मकसद महज जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये शहर के 3 करोड़ से ज़ायद अवाम का मुकदमा है। और ये धरना इसलिए है ताकि हम पीपल्स पार्टी को उसकी आमरीयत से, फस्तायत से रोकें और उन्हें मजबूर करें इस बात पर
कि वो इस बिल को वापस लें। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हम इस मिनी बजट को भी मुस्तरद करते हैं। कराची वालों से हेल्थ, एजुकेशन समेत तमाम सहूलियात छीन ली गई। पार्टी तो जो कुछ इस शहर के साथ कर रही है, जो MNA फंड से MQM और PTI के लोगों ने अंदर की गलियां बनाई थी कि अभी इंतखाब आने वाला है, वो तो इंतखाब तक भी नहीं चल सकी, वो तो उससे पहले बह गई है। तो इसका मतलब ये है कि ओनरशिप ही नहीं है, न विफाक की न सूबे की। इसीलिए तो पीपल्स पार्टी को ये हिम्मत होती है कि वो हमारे हक के ऊपर डाका डाले, और उन्होंने एक ऐसा कानून हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की है जिसके नतीजे में हमारे तमाम इदारे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। सियासी जमातों को आड़े हाथ लेते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि MQM व PTI इस काले कानून के खिलाफ क्यों लॉन्ग मार्च नहीं करती। इन सब के पास जबानी खर्च के सिवा कुछ नहीं। PP खुद सिलेक्टेड हुकूमत है जिसे हम शहर के हकूक पर मजीद डाके डालने नहीं देंगे। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि खबर यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर कराची के चिड़ियाघर का तफसीली दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने झील पार्क की हालत को दुरुस्त करने की हिदायत भी जारी कर दी। कराची में चिड़ियाघर का दौरा करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इस माह चिड़ियाघर से 60 लाख की आमदनी हुई, जिसे चिड़ियाघर की बेहतरी पर खर्च किया जाएगा। कराची का चिड़ियाघर तारीखी अहमियत का हामिल है और कराची के शहरी इसमें गहरी दिलचस्पी भी रखते हैं। चिड़ियाघर में गुले दाऊदी का शो मुनक्किद किया जाएगा। चिड़ियाघर में नए जानवर भी लाए जाएंगे ताकि यहाँ की रौनकों में मजीद इजाफा हो। उनका कहना था कि चिड़ियाघर में वाक़े तारीखी फवारे, सांप घर, मछली घर, झील और जानवरों के पिंजरों की तज़ीन व आराइश की जाएगी। चिड़ियाघर आने वाले शहरियों को खाने पीने की बेहतर अशिया मुहैया की जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि चिड़ियाघर में जितने पुराने दरख्त हैं उनकी हिफाजत की जाए ताकि 200 साल से जायद का ये विरसा महफूज रहे। चिड़ियाघर में मौजूद शहरियों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात की और उनकी कोशिशों और काविशों को खूब सराहा। इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल सैदी, सीनियर डायरेक्टर रिक्रिएशन मंसूर काजी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से ही। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हम कराची के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने अपना एक और वादा पूरा किया। जिला वस्ती के इलाके फेडरल बेरिया ब्लॉक 4 में ज़ेर तामीर सड़क के काम का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये एक अहम सड़क शाहरा हुमायूं को शाह वलीउल्लाह रोड से मिलाती है, जबकि 5.5 किलोमीटर तवील ये सड़क 2 अहम इलाकों को मिलाएगी। माजी में ये सड़क इंतहाई खस्ता हाल थी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची की आवाम से एक और वादा पूरा कर दिया। हम कराची की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। कराची की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। हर जिले में तरक्की का सफर जारी रहेगा। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फेडरल बी एरिया ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 की एक अहम सड़क पर मौजूद हूँ, जो कि मूसा कॉलोनी और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से शाह वलीउल्लाह रोड को कनेक्ट करती है। ये मादी में तबाहाली का शिकार थी। कभी भी जो हमारे मुताल्लिका बल्दियाती इदारे हैं उन्होंने सड़क को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। यहाँ के इलाका मकीनों की जानिब से शिकायत आई थी, कंप्लेन आई थी। KMC अभी अल्हम्दुलिल्लाह सड़क बना रही है। तकरीबन कोई 5.5 किलोमीटर लंबी ये स्ट्रेच की सड़क है, जो कि 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को इंशाल्लाह कनेक्ट करेगी। ये एक और वादा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची वालों से किया था, उसको पूरा करने जा रहे हैं। मादी में इस डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर किया गया। यहाँ के जो DMCs थी, KMC थी, उसने उस तरीके से काम नहीं किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको चीज़ें तब्दील होते हुए नज़र आ रही हैं, काम होते हुए नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वही KMC जो कि मादी में इख्तियारात ना होने की बात करती थी, वही KMC और वही KMC का अमला जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह तरक्की का ये सफ़र, काम का ये सफ़र कराची के हर ज़िले में इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद चन्ना ने कहा है कि जिला शर्की और जिला जुनूबी में नालों से कचरा निकालकर मुतादिद पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद चन्ना की हिदायत पर SSWMB की टीम ने लकड़ी के बांस का जाल बनाकर नालों के क्लोरेट पर जहां पानी का बहाव जाता है वहां फिक्स कर दिए हैं ताकि कचरे को नालों में अंदर जाने से रोका जा सके और कचरे को उठाने का काम भी मुकम्मल किया जा सके। डायरेक्टर जिला शर्की मुशीर अहमद और डायरेक्टर जिला जुनूबी गुलाम अब्बास मुंगरियों की सुपरविजन में शर्की में 25 सैनिटरी वर्कर्स और जुनूबी में 50 सैनिटरी वर्कर्स की टीम बना दी गई है जो हर पॉइंट पर तैनात रहेगी और रोजाना की बुनियाद पर नालों से कचरा निकालने का काम अंजाम देगी। दीगर पॉइंट्स पर भी जाल बनाकर कचरा नालों में जाने से रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जुबैर अहमद चन्ना कहते हैं इस मुनफरिद तरीके से काफी मस्बत नताइज सामने आए हैं और मुतादिद नालों के पॉइंट से कचरा निकालकर उन्हें मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया। मजीद काम भी जारी है। उनका मजीद कहना था कि नालों के अतराफ घरों, होटलों और फैक्ट्रियों से कचरा नालों में डालने का सिलसिला अभी तक जारी है जिसकी वजह से नाले चौक हो रहे हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कचरा नालों में फेंकने से गुरेज करें। कायम मुकाम डेप्यूटी कमिश्नर जिला शर्की तहा सलीम ने नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स का दौरा किया और इंतजामी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत जारी कर दी। जिला शर्की के कायम मुकाम डेप्यूटी कमिश्नर तहा सलीम ने नस्ला टावर के मुआयने के दौरान हिदायत दी कि एक मशीनरी ऊपर काम कर रही है जबकि दूसरी मशीनरी को भी ऊपर लाया जाए और नस्ला टावर पर मुतय्यन मजदूरों की तादाद में भी इजाफा किया जाए। तिजोरी हाइट्स के दौरे के दौरान भी उन्होंने ठेकेदारों को हिदायत जारी की कि मशीनरी का फौरी इजाफा किया जाए। हैवी मशीनरी को लगाकर तिजोरी हाइट्स को इतवार तक क्लियर कर दिया जाए। कराची के जिला बस्ती के मेन होल्स अब शहरियों के लिए खतरे का बायस नहीं बनेंगे। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती तहा सलीम की खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगाने की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची रियाज शेख ने न्यू कराची की 15 यूनियन कमेटियों के लिए 700 मेन होल्स को कवर UC सेक्रेटरी के हवाले कर दिए। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती तहा सलीम की जानिब से जिला बस्ती के तमाम मेन होल्स पर ढक्कन लगाने की हिदायत पर जिले भर के तमाम UCs में खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगाने का काम जारी उसारी है। इस सिलसिले में आज असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची रियाज शेख ने डिप्टी कमिश्नर बस्ती के मरकजी दफ्तर में न्यू कराची में कायम 15 UCs के लिए 700 अदद मेन होल्स कवर UC सेक्रेटरी के हवाले कर दिए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 वसीमुद्दीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 इमरान अली राजपूत भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने मुताल्लिक असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत देते हुए कहा कि अपनी निगरानी में कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की अफरादी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए तमाम खुले मेन होल्स पर ढकने लगवाएं। दूसरी जानिब तमाम UCs के मुतालिक अफसरान और अमले को हिदायत की कि वो आइंदा गटर का ढक्कन चोरी होने के वाकयात की रोकथाम के लिए माकूल इंतजाम भी करे। डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम ने आवाम से अपील की है कि वो अपने इलाकों में गटर के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ शिकायत मुतालिका UC के दफ्तर में दर्ज कराएं ताकि ढक्कन चोर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। वाज़ेह रहे कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम की जानिब से जिला बस्ती को मॉडल जिला बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं जिनमें सफाई सुथराई पर भरपूर तवज्जो, गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात का खात्मा, वॉल चौकिंग का सफाया, पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की बहाली, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और दुरुस्तगी जैसे इकदाम शामिल हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी ने कहा है कि बल्दिया किमाड़ी की हुदूद में रिहाइश पजीर अवाम के देरीना मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने और रिलीफ की बर वक्त फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। विलायत अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अतराफ CC फ्लोरिंग और स्ट्रीट लाइट्स के किए जाने वाले कामों का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी का कहना था कि अवाम को मज़ार आमद और रफ्त में दुश्वारी होती है जिसकी वजह से मज़ार के अतराफ CC फ्लोरिंग और स्ट्रीट लाइट्स का काम कराया गया है। गद्दी नशीन ने विलायत अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अतराफ
کام کروانے پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کیماڑی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے مزار میں آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ تعمیراتی کام کروانے سے آمد و رفت میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ آپ نے جو ترقیاتی کام کرائے ہیں ماضی میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کیماڑی نے ولایت علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنگ انجینئر نوید احمد عباسی، ایکسین ایم&ڈی انوپ کمار اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا ہے کہ منظور شدہ امور کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ ترقیاتی عمل کسی طور متاثر نہ ہو۔ ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے ہر چیز کو میرٹ کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچانا میری اولین ذمہ داری ہے۔ مرکزی آفس میں تعمیراتی کمپنیوں کے نمائندوں سے بروقت مالی ادائیگیوں کے حوالے سے کراچی کا اورنگی ٹاؤن بلدیاتی اداروں کی غفلت کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ بلدیاتی اداروں کی سنگین غفلت اور لاپرواہی ناقص انتظامات کے باعث اورنگی ٹاؤن کی شاہراہیں تباہ حال ہو گئی۔ اورنگی 7 نمبر کی اہم ترین سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صبح اور شام کے اوقات میں ٹریفک جیم ہونا بھی اب روز کا معمول بن گیا ہے۔ کرپٹ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی عوام کے لیے بن گئی وبال جان۔ کراچی کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع غربی کی شاہراہیں بھی تباہی کے نہج پر پہنچ گئی۔ یہ منظر ہے اورنگی ٹاؤن 7 نمبر کو 4:45 سے ملانے والی مرکزی شاہراہ کا، جس کی اثر نو مرمت کے دوران ناقص مٹیریل کا استعمال کیا گیا، جو آج انتظامیہ کی کرپشن کی کہانی سنا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں سڑک پر آئے روز حادثات ہوتے ہیں، لوگ قیمتی جانوں سے بھی جاتے مگر کسی کو عوامی جانوں کا کوئی خیال نہیں۔ روڈ کا تو بہت زیادہ برا حال ہوا ہوا، آئے دن پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہم لوگوں کو۔ اب آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگ دیکھیں کیا حال ہوا ہوا روڈ کا اس جگہ پر۔ بہت زیادہ ہمارے کاروبار پہ بھی اس پہ بہت فرق پڑ رہا۔ ہم بہت پریشان ہوئے ہیں، عاجز ہوئے ہیں۔ 3-4 دفعہ یہاں پر یہ کام ہوا ہے، ترقیاتی کام ہوا ہے، مگر یہ ایسے کنکریٹ ڈال کر اس کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ اس روڈ کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ یہاں پر ہاسپٹل ہے نا، تو لوگ زندہ نہ رہیں، مر جائیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مر جائیں، تو یہاں سے یہ روڈ کو جان بوجھ کے توڑا گیا ہے، سمجھتے ہیں۔ ہر دفعہ پانی پانی پانی، روڈ بنتا ہی نہیں ہے، مگر ذمہ داروں کو کوئی احساس نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو۔ اس روڈ پر آئے دن گاڑیاں اور موٹر سائیکل والے ایک دوسرے کو ٹکراتے رہتے ہیں، اور ٹینکر مافیا نے اور روڈ خراب کر کے رکھ دیا یہاں کا۔ باقی یہ دھول مٹی، ہم بہت پریشان ہو گئے یہاں پر۔ اورنگی ٹاؤن 7 نمبر کو 4:45 سے ملانے والی مرکزی شاہراہ کے تباہ حال ہونے سے گاڑیاں شاہراہ پر دوڑنے کے بجائے رینگنے پر مجبور ہیں، جو انتظامیہ کی آنکھوں سے تاحال اوجھل ہے۔ خبر شامل کریں گے ضلع وسطی کے حوالے سے۔ کراچی کے ضلع وسطی کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی تاحال نہ نکالا جا سکا، جبکہ رہی صحیح کسر سیوریج کے پانی نے پوری کر دی۔ عوام پہلے صفائی نہ ہونے سے پریشان، اب بارش کا پانی بھی وبال جان بنا ہوا ہے، جبکہ پانی کھڑا ہونے سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جگہ جگہ موجود کچرے اور گندے پانیوں نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا۔ شہر قائد میں ہلکی برسات نے ضلع وسطی انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ 2 دن گزرنے کے باوجود علاقے سے بارش کے پانی کی نکاسی کے کاموں کو مکمل نہ کیا جا سکا۔ جگہ جگہ موجود کچرے اور گندے پانی نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا۔ عوام پہلے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے کہ اب بارش کا پانی بھی وبال جان بن گیا ہے۔ بلدیہ وسطی انتظامیہ کی ناکام پالیسی سے نالا شہری کہتے ہیں کہ ضلع وسطی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ علاقے میں نہ سڑکیں بن رہی ہیں، نہ
نہ सीवरेज का निजाम ठीक किया जा रहा है और न ही बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई पॉलिसी नजर आती है। बहुत परेशानी हो रही है, पानी भरा हुआ है इधर, ये जब से बारिश हुई है जब से पानी बढ़ा हुआ है। भाई पानी तो बारिश की पानी है ना, कोई कंपनी का पानी थोड़ी है, ये गवर्नमेंट का काम है, आके सही करे, रोडों को सही करे। जब से ये हुकूमत आया तो मुल्क का बेड़ा गर्क तो हो गया और मजीद बेड़ा गर्क होगा। ये रोड अभी बना है, तकरीबन कोई 5 या 10 दिन पहले जो है ना, अब उस पे जगह जगह यही खड्डे और जगह जगह यही नाली, सिर्फ बारिश का पानी पड़ा नहीं है पहला और इसका ये हाल हो गया आपके सामने। कराची पहले ही मसाइल के अंबार में घिरा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से बारिश के पानी की निकासी के नाकिस इंतजामात शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। जगह जगह मौजूद गंदगी से उठते ताफुन से भी बीमारियां पैदा होने का खदशा है। इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध से दरख्वास्त की है कि जल्द इलाके से बारिश के पानी की निकासी और सीवरेज के निज़ाम को ठीक कराएं। बल्दियाती इदारे रिहायशी इलाकों से कचरा उठाते भी हैं या नहीं, कई सवालात जन्म लेने लगे। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब कचरे के ढेर लग गए। ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना भी अब दुश्वार हो गया। आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। न्यू कराची को लावारिस छोड़ दिया गया है। हम अपनी शिकायत करें भी तो किससे करें? सबा सिनेमा की हालत जार पर मकीनों का सवाल। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। टूटी फूटी शाहराहों और खस्ता हाल तालीमी दरसगाहों के बाद शहर कायद के इलाके भी कचरे के ढेर में तब्दील होने लगे। कराची के इलाके न्यू कराची सबा सिनेमा में कचरे के अंबार ने बल्दिया वस्ती की कारकर्दगी की पोल खोल कर रख दी। इलाके में कचरे के ढेर और इससे उठने वाले ताफुन से इलाका मकीन मेट्रो व न्यूज के सामने फट पड़े। कहते हैं न्यू कराची को लावारिस छोड़ दिया गया, हम अपनी शिकायत करें भी तो किससे करें? इलेक्शन से पहले जो है सब आते हैं, सब वोटिंग लेने तो सब आते हैं, जब इलेक्शन में पास हो जाते हैं, वोट से जीत जाते हैं तो उसके बाद नज़र भी नहीं आते। कोई काम नहीं होता, कोई जिम्मेदारी से काम नहीं होता। तो सबको चाहिए कि अपना जिम्मेदारी से काम करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये कचरा तो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसी से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। हम लोग कोरोना के चक्कर में तो पड़े, लेकिन इससे हमारे यहाँ आप देखें बुखार वगैरह, बच्चों को मलेरिया वगैरह हो रहा है। तो बराए मेहरबानी इस चौरंगी को भी सफाई की जाए, क्योंकि ये मेन चौरंगी है न्यू कराची की। और यहाँ लोग जानवर वगैरह मरे हुए भी फेंक जाते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और ये गोबर वगैरह फेंकता है तो इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगे। सर ये कचरा यहाँ का समेट कभी भी नहीं सकता, कुछ भी कर ले, कोई भी कर ले। ये जितनी हमारी हुकूमत है ना, ये सब खाने पीने वाली बैठी हुई है अभी इस टाइम। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अंबार पर नजर दौड़ाई जाए तो यूँ मालूम होता है कि 50% भी कचरा ठिकाने नहीं लगाया जाता। शहर की गलियों समेत बड़ी शाहराहों पर भी कचरा ही कचरा दिखाई देता है, जिससे न सिर्फ पैदल चलने वाले अफराद बल्कि गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को भी सख्त मसाइल का सामना करना पड़ता है। कराची में कचरे से उठती बदबू और ताफुन एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। और अब रुख करेंगे लियाकताबाद शीश महल का। आपको बताएं कि इख्तियारात की जंग ने कराची को उजाड़ कर रख दिया। लियाकताबाद शीश महल के करीब सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, सीवरेज का पानी जमा होने से आवाम को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सीवरेज के बाइस सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गईं, जबकि जा बजा कचरे के अंबार भी लग गए। इलाका मकीन बल्दिया बस्ती इंतजामिया और वाटर बोर्ड एंड सीवरेज बोर्ड से सख्त नाला नजर आए। कराची सबका, कराची का कोई नहीं। इख्तियारात की जंग ने कराची को उजाड़ दिया। कराची के दीगर इलाकों की तरह लियाकताबाद शीश महल में सीवरेज का पानी खड़ा रहना मामूल बन गया। पानी खड़ा रहने से जहां आवाम को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है, वहीं पानी खड़ा रहने से सड़कें टूट फूट का भी शिकार हैं। इलाका मकीन मौजूदा सूरत हाल पर बल्दिया बस्ती इंतजामिया और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से नालायक दिखाई दिए। कहते हैं सिंध हुकूमत कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। जो लोग उहदे पे बैठे हुए, जो सीट पे बैठे हुए हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वो हर इलाके में इस चीज़ का ख्याल रखे। गवर्नमेंट जो चाहे इंशाल्लाह वो काम कर सकता है। आवाम को बहुत तकलीफ है, गटर के हवाले से, सफाई के हवाले से, गंदगी के हवाले से। रोडों पे पानी खड़ा रहता है, एक हफ्ते तक बारिश होती है, एक हफ्ते तक पानी खड़ा रहता है, एक हफ्ते बाद ही जाके धूप से खुद ही खुशक हो जाता है। जब तक धूप नहीं निकलती पानी भी खुशक नहीं होता। यहाँ पे फुटपाथों के साथ लोग कचरा फेंक के जाते हैं, लेकिन उठने का कोई निज़ाम नहीं है। हमारी हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, अल्लाह रहम करे। कोई आता नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। बस इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, बस अल्लाह तवक्कल चल रहा है ये मुल्क, अल्लाह तवक्कल बस, और कोई कुछ भी नहीं कर रहा। इलाका मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया कि सूरत हाल का नोटिस लें और सीवरेज समेत दीगर मसाइल हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। खबर शामिल करेंगे मंसूर कॉलोनी से। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके मंसूर कॉलोनी में बारिश के बाद नाले उबल पड़े।
सीवरेज का पानी रिहायशियों के घरों में दाखिल हो गया। मंजूर कॉलोनी सेक्टर एफ की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया ख्वाब गफलत के मजे लेने में मसरूफ, जबकि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इलाका मकीनों का शिकवा। कराची के शहरी बदतरीन ट्रैफिक निज़ाम से परेशान है, जिसकी वजह से शहर की टूटी फूटी सड़कें, हिचकोले खाती गाड़ियां शहरियों के लिए किसी कर्ब से कम नहीं है। यही सूरत हाल है जिला मलीर के इलाके उल्दू नगर की, जहां टूटी फूटी सड़कों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। ग्रीन लाइन मंसूबे के दौरान कई बस एम जिना रोड बंद रही। ग्रीन लाइन बस तो चल पड़ी, मगर इसके अतराफ की सड़क खुदाई के बायस आवाम की जान के लिए खतरे का बायस बनी हुई है। कई माह से खोदी गई इस सड़क की वजह से एम जिना रोड पर ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ मार्केट के दुकानदारों का कारोबार भी तबाह होकर रह गया है। शहरी कहते हैं नामुकम्मल होने वाले तरक्याती काम दर्द सर बन गए हैं। कई माह हो गए मगर लाइनों की तब्दीली का काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा। ये महीने 2 महीना हो गया है, जब भी आते हैं खोद के चले जाते हैं, कभी गटर की पाइप डालते हैं, कभी 3-4 महीने हो जाते हैं कच्चा वच्चा ढाके जाते हैं। ऐसा जहरीला पानी है कि यहाँ पर बच्चे आते हैं। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।